Good morning, students. Today our topic is interest on partners drawing, in which yesterday we have done the topic of calculation of interest on partner drawing by using the method product method, in which we have two methods, the simple method and the product method. This method is used when a partner make irregular drawings, but when the amount withdrawn by the partner is uniform and the time interval between the two drawings is also uniform, then we will use the method that is average profit, average period method. So in this method we have a formula that is interest on drawing. It will be calculated by using formula that is equal to total drawings into rate of interest divided by 100 into average period divided by 12. There is a formula to calculate this average period. Average period equals to months left after first drawing plus months left after last drawing. Both these are divided by 2 to calculate its average. So in this we have a total of 9 situations. So we will make a separate chart of these 9 situations. So given heading average period method, all this situation uses the formula that we have written now. So first of all we just rewrite the formula, that is interest on drawing equals to total drawing into rate of interest divided by 100 into average period divided by 12. Average period is calculated by using a formula, that is the months left after first drawing plus months left after last drawing divided by 2. So we have a total of 9 situations in this. Situation number 1. A situation where a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month. A situation where a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month, then the interest is to be charged on the whole month for 6.5 months. So this 6.5 months कैसे calculate हुए? वो कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि मैं हर महीने एक अमाउंट विड्रॉ करूँगा और वो हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करूँगा, तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो कहते हैं जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एवरेज पीरियड हम 6.5 लेंगे. तो वो 6.5 कैसे आएगा? So situation 1, write it down.
fixed amount at beginning of every month. तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज पीरियड जो है वो 6.5 मंथ का होगा. तो वो कैसे कैलकुलेट हुआ हमारे पास? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, जितना हमारा टोटल ड्राइंग होगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ हमारे पास? सबसे पहले वो कहते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट हम महीने के सबसे पहले दिन ही बिगनिंग में ही कर लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दैट मंथ के जो सबसे पहली ड्राइंग है उसके बाद कितने मंथ्स बचे और जो सबसे लास्ट ड्राइंग है उसके बाद कितने मंथ्स बचे, उन दोनों का एवरेज. तो हमने हर महीने की पहली तारीख को मतलब स्टार्टिंग में ही बिगनिंग में ही उसे विड्रॉ कर लिया. अगर हम बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, तो हमारे अप्रैल में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही हमने विड्रॉ कर लिया, राइट. तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लिया. तो हमारे पास मंथ्स कितने पड़े हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो हमारे पास 12 के 12 महीने पड़े हैं अभी, राइट. देन प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स. लास्ट ड्राइंग कब होगी? वो साल के आखिर में. हमारा फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है? मार्च में. तो मार्च की वो स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लेगा. तो मार्च के पहले ही मंथ के बिगनिंग में ही विड्रॉ कर लिया. तो मार्च अभी पूरा पड़ा है, तो 1 मंथ अभी पूरा पड़ा है, तो 1 आ गया. इसका हम एवरेज लेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 2. So that is why this become 13 divided by 2, which is 6.5. That is why it is written over here that fixed amount जब withdraw होगी तो 6.5 जो है वो हमारा एवरेज पीरियड बन जाएगा. ठीक है. So the next situation we have, write it down, situation number 2. Where a fixed amount is withdrawn at end of every month. तो यहाँ पे हम सिर्फ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है. हमें सिर्फ पता करना है कि यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना है. तो अगर हमारे हर महीने के आखिर में हम विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या होगा? तो जब हम सबसे पहले विड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग होएगी वो अप्रैल में होएगी और अप्रैल के आखिर में होगी. तो मतलब पूरा अप्रैल हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद हमारे पास पीछे बच गए. अप्रैल यूज़ हो गया, वो तो निकल गया. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो हमारे पास 11 मंथ्स बच गए. प्लस लास्ट जो हमारे पास ड्राइंग होगी, लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? मार्च में, और मार्च के आखिर में. तो जब मार्च के आखिर में हमने की तो वहाँ पे हमारे पास मंथ कितना बचा? कोई भी नहीं. 31 मार्च को आखिर में किया, मंथ कुछ बचा ही नहीं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 0. तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दैट इज 11 डिवाइड बाय 2, वी गेट 5.5 इज द एवरेज पीरियड. डन. Then we have a next situation. Situation number 3. Where a fixed amount is withdrawn in the middle of every month. तो हर महीने के मिडल में हम अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं. तो फिक्स्ड अमाउंट in middle of every month. तो हमारे पास एवरेज पीरियड में वो हर महीने विड्रॉ करेगा.
तो सबसे पहले वो अप्रैल में करेगा क्योंकि हमारे अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो अप्रैल के हमारे पास अप्रैल का हाफ महीना पड़ा है और बाकी के 11 महीने पड़े हैं, तो यहाँ पे आ गया 11.5 प्लस जब वो लास्ट मंथ ड्राइंग करेगा तो मार्च का अभी आधा महीना पड़ा है, तो वहाँ पे आधा महीना 0.5 उसका आ गया, डिवाइड बाय 2, तो ये 12 डिवाइड बाय 2 देन इट बिकम 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम मैम डायरेक्टली यही क्यों नहीं याद कर लेते कि अगर बिगनिंग है तो इतना लेना है एवरेज पीरियड, अगर एंड है तो इतना लेना है, बिकॉज वी गेट क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम जहाँ पे आपको ना तो डायरेक्टली बिगनिंग दिया होगा ना ही डायरेक्टली एंड दिया होगा, आपको सिचुएशंस दे रखी होंगी कि इस तारीख को आपने विड्रॉ किया, अब बताओ आप ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करो। तो उसमें एवरेज पीरियड हम हमेशा ऐसे देखेंगे कि उसने कब ड्राइंग किया और उसके पहले ड्राइंग पे कितना टाइम बचा और उसके बाद की ड्राइंग के बाद लास्ट ड्राइंग पे कितना टाइम बचा, और उसको डिवाइड कर देंगे 2, दैट विल बी द एवरेज पीरियड। डायरेक्टली भी हो सकती हैं कुछ सिचुएशंस ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में वो सिचुएशंस भी आ सकती हैं, इसीलिए हमें ये एवरेज पीरियड निकालना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 4। when a fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter during the year। तो फिक्स्ड अमाउंट जो विड्रॉ की है वो क्वार्टर के बिगिनिंग में की है। इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो वहाँ पे एवरेज पीरियड क्या होगा, सबसे पहले क्वार्टर पे हम मतलब कि अप्रैल में ही विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि बिगनिंग में कहा है। क्वार्टर का बिगनिंग क्या होगा, हमारे पास अप्रैल मई जून, हमारे पास 3 महीने, पहला क्वार्टर है, 4 क्वार्टर्स होते हैं, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, और पहले क्वार्टर के पहले ही बिगनिंग में ही हमने कर लिया, मतलब अप्रैल में कर लिया। तो अप्रैल के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा, सारा का सारा टाइम बचा, पूरा साल बचा, तो 12 महीने। फिर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सबसे लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, जो लास्ट 3 मंथ्स होंगे वो क्या होंगे, जनवरी फरवरी मार्च, और उसमें हमने उसकी बिगनिंग में ही विड्रॉ कर लिया, मीन जैन में ही कर लिया, तो उसके बाद कितने महीने बच गए, जनवरी फरवरी मार्च, द 3 मंथ्स। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो डिवाइड बाय 2, दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 एंड वी गेट 7.5 as average period. Done? Then we have situation number 5. Situation number 5 says that when a fixed amount is withdrawn at the middle of every quarter, क्वार्टर के मिडल में हमने विड्रॉ किया है अमाउंट कोई भी, तो हम तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट एट मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, तो उसने आधा हाफ में कर दिया, तो अप्रैल और मई का हाफ। ठीक है जी, 3 महीने हैं, 1.5 महीना हमने पहले यूज़ कर लिया और 1.5 महीना बच गया, तो हमारे पास पिछले 3 क्वार्टर्स बचे हैं अभी। ठीक है, 3 क्वार्टर्स, 3 महीने, 3 महीने इंटू 3 कितने हो गए, हमारे पास 9 महीने पड़े हैं, और इस क्वार्टर का 1.5 महीना पड़ा है, तो हमारे पास कितने महीने बच गए, 10.5। फिर हमारे पास लास्ट क्वार्टर है जो क्या है, जून, जनवरी फरवरी मार्च, उसका भी उसने 1.5 महीना यूज़ कर लिया और 1.5 महीना अभी पड़ा है, तो वो 1.5 महीना यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बना, 12
divide by 2, then we get 6, right? Then we have another situation, that is situation number 6, which says that a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter. तो एवरेज पीरियड क्या होगा? पहला क्वार्टर उसके आखिर में किया, अप्रैल मई जून, तीनों महीने गए, तो पीछे रह गए 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, 3 × 3 कितना बन गया हमारे पास? 9। और लास्ट क्वार्टर का आखिर में किया, तो उसके बाद मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च के एंड में किया, तो मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पे आ गया 0। दिस डिवाइड बाय 2, 9 divided by 2, we get 4.5 as an average period. Done? Then we have another situation, that is situation number 7. Situation 7, where a fixed amount is withdrawn during 6 months. Fixed amount withdrawn during 6 months. So 6 months का हमारा पीरियड है, और उसमें हमने सिर्फ 6 months को अज्यूम करके क्वेश्चन करना है, और 6 मंथ में भी हमारे पास आगे क्लासीफाई है, और 6 मंथ में अमाउंट जो विड्रॉ की है वो हमने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की है। तो हमारे पास एवरेज पीरियड विल बी सबसे पहले 6 महीने, तो पहले महीने के बिगनिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लिए, तो हमारे पास 6 के 6 महीने बचे हैं। और उसके बाद हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे 6 महीने बचे हुए पूरे, और सितंबर के हमने बिगनिंग में ही विड्रॉ कर लिए, तो हमारे पास 1 महीना उसका पड़ा है। डिवाइड बाय 2, दैट इज 7 डिवाइड बाय 2, दैट वी गेट 3.5 मंथ्स। ये सभी मंथ्स हैं, ठीक है जी। Then next we have in the middle of each month, हर मंथ के मिडल में उसने ड्राइंग की है, तो हर मंथ के एवरेज पीरियड विल बी 6 महीने को लेके चलेंगे। पहला महीना क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है हमारे पास, तो अप्रैल का आधा महीना हमने यूज़ कर लिया और बाकी महीने पड़े हैं, तो हमारे पास कितने रह गए? 5.5। और ऐसे ही सितंबर का हाफ महीना यूज़ है, लास्ट विड्रॉइंग, और हाफ महीना अभी पड़ा है, तो हमारे पास कितने रह गए? 0.5, आधा महीना पड़ा है, तो दैट विल बी 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, वी गेट 3 months. Then third situation is at the end of each month. तो यहाँ पे एवरेज पीरियड विल बी एंड ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल टू सितंबर हमने देखना है। अप्रैल के पहला महीना जो अप्रैल है उसके एंड में किया, तो अप्रैल सारा यूज्ड, पीछे रह गए 5 महीने। ऐसे ही सितंबर है, सितंबर सारा यूज्ड, पीछे रह गया 0, क्योंकि हमने 6 महीने देखने हैं। तो डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, वी गेट 2.5 months. Done. Then next situation we are having is situation number 8. If the date of withdrawal is not given, अगर हमें ये डेट्स ना दी हों कि हमने कब ड्राइंग की है,
then the interest on total drawing for the year will be calculated for 6 periods, 6 months only. मतलब अगर हमारे पास date of withdrawal is not given, then we will calculate the average profit, we will calculate the average period as 6 months. तो हम एवरेज लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अगर हमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता है. Then we have last situation, that is situation number 9. In this situation, when the rate of interest is given without the word per annum, then the interest is charged without considering the time factor. This means that अगर हमारे पास rate of interest simply लिख रखा है, rate of interest is given, but per annum word नहीं है, not written, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर. मतलब कि हमारे पास लिख रखा है कि एग्जाम्पल कि हमारा 10% जो रेट है 2.5 लाख हमारी विड्रॉल है, तो हम डायरेक्टली टाइम फैक्टर नहीं देखेंगे, हम सीधा पर एनम वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ, तो हम 2.5 लाख के ऊपर 10% लगा के कोई टाइम पीरियड अज्यूम नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे हम 6 मंथ्स लेते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 10% लगा के यहाँ पे आंसर निकाल देंगे 25,000. ठीक है बच्चों. So now we will do a question on this topic.